Hello students, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Last time you have seen on the board a diagram of human heart, right? Because we learned at that time transportation in human being. But today you can see the diagram of a tree, a plant. It means what? We are going to learn today transportation in plant. So without wasting so much time, let's start today's topic, transportation in plants. So see children, very important notes and very important points are going to appear on your screen. Note down these all points in your copy and learn them. These are very important. So let's start that point. So point number 1 is, plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organ, namely leaves. Yes, plants क्या करते हैं? सिंपल कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड द एनर्जी विच दे गेट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, these all things, okay, they stored, where they stored? In the leaves. That's why leaves are able to produce their food, right? Then along with this, plants need some other raw material also. So from where they get this all raw material? So see point number 2. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. राइट प्लांट्स के लिए सबसे नियरेस्ट मतलब सबसे पास में और सबसे रिचेस्ट सोर्स जो होता है रॉ मटेरियल का, कौन से? जैसे कि रॉ मटेरियल कौन से? जस्ट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स. ओके, दीज ऑल थिंग्स प्लांट्स रूट गेट फ्रॉम देयर सॉइल. ओके, now the thing is what? Whatever they get from the soil, these raw materials just like a nitrogen, phosphorus, okay, and many more minerals are there. So these all minerals should reach to the each and every part of the plant, right? So point number 2, see क्या है? If the distance between roots and chlorophyll is small, then energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. right? अगर प्लांट के रूट्स के और अदर पार्ट के बीच में अगर डिस्टेंस कम है, स्मॉल है, तो इजीली प्लांट एनर्जी हो और रॉ मटेरियल हो, इजीली क्या होता है? उस प्लांट में डिफ्यूज हो जाता है, राइट? मीन्स इजीली प्लांट में पहुंच जाता है ईच एंड एवरी पार्ट तक के. But what happened if this distance, if the body design of the plant is different? Okay, suppose करो कि बहुत लंबा ऊंचा वाला प्लांट है, तो वहां पर किस तरह से फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. सो सी हमारा पॉइंट नंबर 3, if this distance become larger because of change in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in root. Okay, so at that time diffusion के प्रोसेस से raw material हो, energy हो, plant के each and every part तक के पहुंचाना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो अगर स्मॉल प्लांट है तो इजीली डिफ्यूजन से हो जाएगा, बट अगर बड़ा सा प्लांट है तो ये होना मुश्किल होता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्लांट्स डू नॉट मूव and plant bodies have a large proportion of dead cell in many tissues. As a result, plants have low energy need and can use relatively स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट? प्लांट्स के ये तो हमें पता है कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि प्लांट्स में डेड सेल, बहुत सारे टिश्यूज़ में डेड सेल ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. सो इतना बड़ा प्लांट है, ओके, बट उसमें बहुत सारे डेड सेल है, तो डेड सेल को तो एनर्जी और फूड की तो ज़रूरत है नहीं, वाटर की ज़रूरत है नहीं. ओके, सो
और दूसरी चीज़ कि प्लांट्स मूव भी नहीं करते, इसके लिए भी उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ देयर वर्क, ओके। तो ऑफकोर्स उनको ज़्यादा एनर्जी लगती है, बट प्लांट्स तो एक ही जगह पर रहते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ कि इसमें बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं, सो दैट्स वाई इनको खूब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड, ओके, उनको कम एनर्जी की नीड होती है, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 it is. There are two pathways are constructed as independently organized conducting tube. ओके, अब ये जो एनर्जी प्रोवाइड करना है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, इसके लिए क्या होते हैं, पाथवेज होते हैं। मतलब प्लांट में दो जैसे रास्ते होते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, वाटर मूव करेगा। पहला रास्ता होगा जिसके थ्रू वाटर मूव करेगा प्लांट में, ईच एंड एवरी सेल तक के प्लांट के, ओके। एंड दूसरा रास्ता होता है फूड के लिए, जिसके थ्रू क्या करेगा, फूड एक्सचेंज होगा। फूड क्या होगा एक्चुअली, प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहुँचेगा। सो द फर्स्ट रूट एंड फर्स्ट that thing which is responsible for the moving of water, that is xylem. First tissue name is what, that is xylem. And second tissue name is what, phloem, which is responsible for the transport of product of photosynthesis from the leaves to other parts of plant. Okay, there are two pathways, there are two tissues which are responsible separately for this both thing. First is what, xylem tissue, which are responsible for the moving of water in the plant. Second is what, phloem, which is responsible for the transport of product of photosynthesis. photosynthesis के हेल्प से जो प्रोडक्ट बना है, जो बोलेंगे हम खाना बना है, उसे लीव्स से, ऑफकोर्स लीव्स ही खाना बनाती है, लीव्स से प्लांट्स के अदर पार्ट तक के पहुंचाने के लिए फ्लोएम टिश्यूज वर्क करते हैं. सो दीज आर फ्यू very important points which you can see on the screen. First of all, note down these all points and remember beta, these all important notes I have taken out from your NCERT book. Okay, so you will get these points there also. Underline it if you are not able to write just now. So first of all, underline it. Now let's understand about transport of water, which will be happen through xylem tissue, and transport of next is what, that is food and other substances which can be done through phloem. So first of all, transport of water. See, you can see the plant on the screen, right? Roots जो किससे कनेक्टेड होते हैं, किस में होते हैं, सॉइल में, ये तो सबको पता है, राइट. रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. ओके, मेन हमारे प्लांट के पार्ट. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये क्या ड्रॉ करके रखा है, ट्रेकिड और वेसल्स. सो सी बेटा, ये ट्रेकिड और वेसल्स क्या होते हैं, ये होते हैं जाइलम टिश्यूज में. जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है वो कौन से है, जाइलम टिश्यू है. सो इसी जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं ट्रेकिड एंड वेसल्स. ओके, एंड ये ट्रेकिड वेसल्स रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में, हर इसमें होते हैं. एंड वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं. वो कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं. व्हेनेवर रूट्स क्या करेंगे, जब भी रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे, एक्चुअली रूट्स तो एब्जॉर्ब करते ही रहते हैं वाटर को, मिनरल्स को. ओके, सॉइल में बहुत सारा जैसे वाटर है, मिनरल है. ओके, सॉइल में बहुत सारा क्या है, वाटर है, मिनरल है. तो ऑफ कोर्स रूट में थोड़ा लो रहेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, एंड सॉइल में ज़्यादा है. इट मीन्स व्हाट, ऑफ कोर्स आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूज़न होता है. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक के हर चीज़ क्या होती है, ट्रैवल होती है. तो सॉइल से कहाँ पर आ जाएंगे, वो रूट में आ जाएंगे. रूट क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे. ओके, रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पे
क्या क्या एब्जॉर्ब किया होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। रूट जैसे एब्जॉर्ब करेंगे उसको, वो क्या करेंगे, वो पुश फॉरवर्ड करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में वो पुश करेंगे। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही पुश क्यों होता है, व्हाई इट इज, क्यों ये वहीं पे नहीं रहता है, तो आपको पता होगा बेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, लीव्स में होती है। कहाँ होती है, लीव्स में होती है। ओके, अब ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, दैट सन क्या कर लेता है, सन क्या कर लेता है, ये तो पता है, लॉस ऑफ वाटर। लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमेटा, और स्ट्रोमेटा जैसे जैसे ओपन होता है उसी में से क्या होता है, लीव्स में से रिमूवल ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर बोलेंगे हम। ओके, ट्रांसपिरेशन मीन्स व्हाट, लॉस ऑफ वाटर। तो ऑफ कोर्स लीव्स में से वाटर कहाँ चला गया, वाटर कहाँ चला गया, सन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब किया उसको, सन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। इट मीन्स व्हाट, इन द लीव्स देयर दिस लीव्स विल फाइंड द लैक ऑफ वाटर। ओके, पानी की कमी वो यहाँ पे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सन ने ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस एक्चुअली प्लांट्स में हो गई, और वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। अब यहाँ पे क्रिएट होता है सक्शन। ओके, मतलब एक जैसे यहाँ पे वाटर कमी हो गई, यहाँ पे अबंडेंट वाटर है, तो ऑफ कोर्स ये वाटर स्टेम के थ्रू क्या कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हर एक लीफ तक के। ओके, एंड ऑलवेज वाटर मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, हमेशा वाटर क्या रहेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। अब वाटर तो यहाँ पर है नहीं, लीव्स को कहाँ से वाटर मिलेगा, लीव्स कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, तो लीव्स तो कहीं से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट के अदर पार्ट्स को तो नहीं दे पाएंगे। ओके, सो only roots are responsible for that. They absorb water and mineral from the soil. Okay, and they push upward. Okay, push upward that water and mineral to the each and every cell of the plant. और ये क्यों होता है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। वाई, बिकॉज ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर क्या हो रहा है, लीव्स में से रिमूव हो रहा है, यहाँ पे सक्शन तैयार हो रहा है, एंड थ्रू दैट क्या हो रहा है, फिर जाइलम टिश्यू एक्टिव हो रहा है यहाँ पे। ओके, जाइलम टिश्यूज में क्या है, ट्रैकिड और वेसल्स है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके, एंड जाइलम टिश्यू क्या कर रहे हैं, फिर वो वाटर क्या करेंगे, रूट से स्टेम से हर एक लीफ में। ये देखो यहाँ पे ट्रैकिड और वेसल्स में आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं। जैसे ही वाटर इन होल्स तक के मिलता है, एक होल को मिल गया वाटर दूसरे होल तक पहुँचाएगा, तीसरे होल तक, ऐसे मतलब वो क्या होते, इंटरकनेक्टेड होते। सी दिख रहे हैं ट्रैकिड, ये कैसे होते, इंटरकनेक्टेड। ये वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन तक के पहुंच जाएंगे। इनमें तगड़ा नेटवर्क होता है, ऐसा नहीं कि जिसको मिल गया उसने अपने पास रखा। नो, क्या करेगा, जिस पीट को वाटर मिला वो पीट क्या करेगा, वाटर को आगे फॉरवर्ड करेगा। इन दिस वे transportation of water occurs in the plant. Next is transport of food and other substances. See, इसमें हमें मेन 3 पॉइंट पढ़ना है, मेन 3 चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में। सी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है क्लास 10 में, राइट। सो इसमें हमें 3 पॉइंट्स पढ़ना है। एक है ट्रांसलोकेशन, दूसरा सीव ट्यूब क्या है और क्या काम करती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला, व्हाट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किसके थ्रू होता है, वो होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, ठीक है, वो होता है फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू, राइट। और वाटर का किसके थ्रू हुआ था, जाइलम से। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किसके थ्रू हुआ था, जाइलम के थ्रू, और फूड का फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू होता है। सो जाइलम तो हमने पढ़ लिया, यस, वी हैव लर्न अबाउट जाइलम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्लोएम। ओके, फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, दैट इज
जो भी फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू लीव्स बनाती है उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है प्लांट में उस डायरेक्शन वहाँ पे वो सेंड करते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक था कि जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन वाटर, बट देयर इज ओनली इन यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही वन वे, जैसे हम बोलेंगे वन वे ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। बट फ्लोएम के से जो भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये 2 वेज से होता है, ओके, मीन्स इन अपवर्ड एंड डायरेक्ट एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो जाइलम से वाटर जो जाता है इट गोज ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट फ्लोएम से जो होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो होता है, राइट। सो अब है सी ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है सबको पता है। फोटोसिंथेसिस ने में प्लांट में जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है सॉल्यूबल प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ओके। तो जो भी सॉल्यूबल प्रोडक्ट रहेगा उसको ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो ये जो ट्रांसलोकेशन होता है, ओके, दिस हैपन थ्रू सीव ट्यूब। किसके थ्रू होता है, सीव ट्यूब के। यस, फ्लोएम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल, बट होता कहाँ से है, सीव ट्यूब से, राइट। सीव ट्यूब से क्या होता है, वॉट एवर फूड प्रोडक्ट इज दैट ट्रांसफर टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट, ओके। नाउ अब ट्रांसफर क्या होता है फ्लोएम में, जस्ट लाइक वैसे एक तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या ट्रांसफर होता है फ्लोएम के थ्रू। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलेंगे फूड, तीसरा अमीनो एसिड, तीसरा क्या है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी क्या है, कैसे फॉर्म होता है, ये हमने डाइजेशन की प्रोसेस में पढ़ लिया है, ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, राइट। और कुछ अदर सब्सटेंसेस, और क्या होते हैं, और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जो क्या होते हैं फ्लोएम में, फ्लोएम के थ्रू फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, प्लांट्स के ईच एंड एवरी सेल तक के पहुंचाता है। तो उसके लिए हेल्प करता है ऑस्मेटिक प्रेशर। उसके लिए ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना है, मतलब हर बार, मतलब जैसे वाटर है हर टाइम वो फ्लो करता ही रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उस तरह से फूड होता है क्या, नो, जहाँ पर नीड है प्लांट को, ओके, जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है, बर्ड है जिसे अभी फ्लावर उगने वाला है, तो वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ पर फूड की ज़रूरत है, ओके। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ये फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये होता है थ्रू ऑस्मेटिक प्रेशर। वो किसके थ्रू होता है, थ्रू ऑस्मेटिक प्रेशर। सो दिस ऑस्मेटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वेयर एवर प्लांट नीड इट। जहाँ पर भी प्लांट को फूड की एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर के थ्रू क्या होता है, फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, फूड को पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रहा था, राइट, ट्रांसपिरेशन से यहाँ पे सक्शन हो रहा था और जिस वजह से वाटर ऊपर की तरफ पुल हो रहा था, राइट, वैसे यहाँ पर है ऑस्मेटिक प्रेशर जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जहाँ पर प्लांट्स को नीड है फूड की वहाँ पर फूड ट्रांसफर हो रहा। See the last part of this video, just let's summarize whatever we have learned. Transportation in plant, there are two types of tissues are responsible, two pathways are there, okay. One it is transferring for water, responsible for water, and दूसरा है food material. So water transport के लिए responsible है xylem tissues. xylem tissues में होते हैं tracheids and vessels, जो मैंने बताया, जो क्या होते हैं, interconnected होते हैं stem root और leaves के। So xylem क्या करता है, carries water and minerals from the roots to other part of the plant। ये बताया मैंने, xylem tissue क्या करते हैं, carries water and mineral को roots से, okay, roots से other parts of the plant तक के क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एंड फॉर दैट दे डोंट नीड एनी एनर्जी, वो कोई भी एनर्जी यूज नहीं करते हैं, ये जस्ट ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होता है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस लीव्स में होती है, सक्शन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, एंड वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर के डायरेक्शन में
पुल किया जाता है, ओके। और उसको ट्रांसफर करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, जाइलम टिश्यू, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज आर कैरीज फूड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यस, जो भी फूड है प्लांट के लिए, जो भी रिक्वायर्ड फूड है वो फूड को, सॉल्युबल फूड को ट्रांसफर करता है प्लांट्स के ईच एंड एवरी सेल तक के, ईच एंड एवरी पार्ट तक के, जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, तो उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, राइट। और ये भी बताया मैंने कि फ्लोएम जो भी करता है ये होता है थ्रू सीव ट्यूब से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसी ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट जो कि मेडअप है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने के ही प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, ओके। और यहाँ पे तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, जाइलम कोई भी एनर्जी नहीं लेता है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, लेकिन फ्लोएम को मिलती है एनर्जी। फ्लोएम एनर्जी यूज करके क्या करता है, फूड प्रोडक्ट को ट्रांसफर करता है। सेकेंड, वन मोर थिंग, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड, ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर क्या होता है, फ्लो होता है। बट फ्लोएम से जो भी फूड प्रोडक्ट ये होता है, ट्रांसफर होता है, इट हैपन्स इन बोथ वेज, इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। सो फूड क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, जहाँ पर भी प्लांट को नीड है वहाँ पर फूड जाएगा, और वो कैसे जाता है, सीव ट्यूब के थ्रू ऑस्मेटिक प्रेशर के हेल्प से, ओके। फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। सो इट गोज इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बहुत खूब लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज फॉर टुडे। वी हैव completed this chapter up to transportation full, up to respiration we have completed already in the class, and transportation through these videos. Now only the last part of this chapter, that is excretion, is only remaining, that I will put in our next video. Till then you prepare this chapter till transportation in plant, and if you find any query, if you find any question or problem, you just comment in comment box, okay, or you message me. I would like to answer it. So this is for today. Thank you so much for watching this full video. Stay home, stay safe beta. Bye bye.